Hi guys, good morning. It's 15th February, Tuesday. It's my third day of the Hannah Millie 7-day Valentine challenge. If you saw yesterday's vlog, Monday's vlog, you would know that I decided that I would wake up at around 6:45 every day. Yesterday only I started this habit, but today I woke up actually at 6:45 only, 6:47, but then I slept again. And then I woke up an hour late, so I'm an hour behind my schedule. And I'm already feeling lazy because of that. So right now it's 8:45 and I have still not done anything, like apart from organizing my room and everything. I've not done any major thing, and now I have to do the workout, right? Okay, let's just do it. I really don't want to skip or anything because who wants that? Also, I don't remember if I told this in yesterday's vlog, but I felt so bloated the whole day yesterday, and today I did 2 rounds of potty. Now I feel better. Now this is a little bit inside. Bloating is something different than like being fat. I don't know, I feel uncomfortable. It's mostly because of rice. I never thought of that, but now that I ate rice after a long time, I feel like only rice could have made me bloat, because everything else I do eat in daily life. And also we have a new guest, guys, and it's painful as well. I think it's because of the sweets I eat, and that's a lot. Yeah, let's just do the workout. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you need. We're broken, it's tragic. We're not all elastic, but maybe there's magic. Believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness. Before the workout I was like, यार मुझे नहीं मन कर रहा वर्कआउट करने का, पर फिर भी कर लेते हैं. But trust me, this workout was not even a workout. Like, it was just relaxation exercises. I felt so relaxed after doing that. And उसके बाद I just hopped on to my meeting. 10 बजे जो stand up call होती है, that I attended. उसके बाद I did वर्क फॉर स्ट्रेट 2 hours. सो आजकल ना सुबह के टाइम कुछ ज़्यादा ही लोड रहता है. सो लाइक अगर कॉल से पहले नहा लिए तो नहा लिए, वरना उसके बाद यू डोंट गेट टाइम एटलीस्ट 1 बजे तक. सो 10 to 1 आई वॉज वर्किंग ओनली. एंड इफ़ यू कैन नोटिस, आज मेरा सेटअप थोड़ा अलग सा ही था कॉल्स वगैरह के लिए. एज यू कैन सी, मैं नीचे आ चुकी हूँ. सो आई वॉज वर्किंग ऑन द सोफ़ा, विच इज़ नॉट द बेस्ट पॉस्चर फॉर मी. ऑल्सो मेरा पॉस्चर वैसे ही काफ़ी बिगड़ा हुआ रहता है. बट एनीवेज, सो मैं नीचे इसलिए काम कर रही हूँ आजकल बिकॉज भाई के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, एंड ही गेट्स रियली डिस्टर्ब जब भी मैं ऊपर जाके मीटिंग्स वगैरह कॉल्स वगैरह होती है, वो रहता ही है. सो एज आई टोल्ड यू, 1 बजे तक तो मैं काम ही कर रही थी एकदम लग के. उसके बाद आई हैड मैगी एज
ब्रंच में भी, बट नहीं, लंच भी किया मैंने उसके बाद, बट या वेरी अनहेल्दी आई मस्ट से। ऑल्सो उस टाइम के लिए मुझे भाई ने बैठने दिया ऊपर, एंड उसके बाद उसे ही कुछ काम आ गया था, सो ही वॉज नॉट स्टडिंग। तो मैं यहाँ बड़े मन से बैठ रही थी अपने टेबल वाले सेटअप पे। जब कोई चीज़ नहीं मिलती ना, या बड़ी मुश्किल से मिलती है, बेशक वो कोई जगह हो, वो कोई ऐसे खाने की चीज़ हो, कुछ भी हो, तो बड़ा मज़ा आता है कि यार थोड़ी देर के लिए मिली है, पूरा लुफ्त उठाते हैं। लुफ्त व्हाट द हेल इज़ दैट वर्ड? लुत्फ, आई डोंट नो। मज़े उठाते हैं। सो या फॉर द मोस्ट पार्ट ऑफ द डे आई वॉज ओनली वर्किंग। काफ़ी सारे एरर्स आ रहे थे, बट एनीवेज उसकी वजह से टेंशन तो रहती है। उसके अलावा बिकॉज आई हैड मैगी काफ़ी ज़्यादा लेट, से उसकी वजह से मैंने लंच काफ़ी ज़्यादा लेट किया, ठीक से नहीं किया। और जब तक मैंने लंच किया तब तक मम्मी ऑलरेडी किचन साफ़ कर चुकी थी। सो मेरे ही बर्तन थे, जो भी बर्तन मैंने किए थे, खाली हुए थे कुछ प्लेट्स वगैरह, तो दैट आई क्लीन्ड। ऑल्सो मेरे एक सिंक के साइड में इतना सारा पानी रहता है ना। एनीवेज देयर इज़ वन मोर थिंग दैट आई डिड, मेजर थिंग इस दिन की, जिसका मुझे गाइज बहुत ज़्यादा पछतावा है, बट आई एट चॉकलेट्स और मैंने सारी खा ली। आई एम राइट नाउ, आई एम लाइक डूइंग द वॉइस ओवर एक दिन के बाद, राइट। सो ये मैंने कल ही फिनिश कर दी थी। गाल पे एक मेहमान अनचाहा आ चुका है ऑलरेडी, बट नहीं, चॉकलेट नहीं छोड़ेगी। और ये रैपर खाली नहीं है एक्चुअली, मैंने ऑलरेडी इतनी खा ली थी, उसके बाद सारी खा ली। बट या आई डोंट नो यार, मैं चॉकलेट के नाम पे ना आई गेट सो टेम्प्टेड, मैं बस रुक नहीं पाती। कितनी भी बड़ी हो, कितनी भी सारी हो, आई ईट इट एक टाइम में ही, लाइक 2 दिन से ज़्यादा तो चल ही नहीं सकती। सो एनीवेज आई हैड माई डिनर, जो कि मेरे को भूख ज़्यादा नहीं थी, आई जस्ट हैड इट बिकॉज मम्मी गुस्सा करती है वरना। और फिर रात को आफ्टर एवरीथिंग वॉज डन, मैं लग गई इस सेफ पे। सो इन केस यू डोंट नो, मैं इस सेफ को, जो कि काफ़ी ज़्यादा पुरानी है, 25-26 साल, इसको आई एम ट्राइंग टू कवर विद दिस वॉल पेपर विच आई ऑर्डर्ड ऑफ अमेज़ॉन। एंड इसमें मैंने थोड़ी सी एक्चुअली मिस्टेक कर दी राइट साइड वाले पोर्शन में, तो उसको मुझे रीडू करना पड़ेगा बाद में। एंड ऑल्सो ये साइड वाला पोर्शन रहता है अभी पूरा कवर करने के लिए, बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक इट्स लुकिंग प्रिटी गुड, राइट। और ये ऊपर भी थोड़ा सा लाइक हाँ कमी है अभी इसमें, बिकॉज मैंने राइट साइड वाले में थोड़ा जल्दबाजी कर दी कह सकते हैं, या फिर थोड़ा अंदाज कम लगाया एंड थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, बट आई एम वेरी श्योर आई एम गोइंग टू फिक्स दीज मिस्टेक्स। सो दैट्स इट अबाउट द डे। उसके बाद मैं ऊपर आई, जस्ट सोने से पहले आई अप्लाइड दिस क्रीम, जो कि मेरे लाइक डर्मैट ने सजेस्ट की थी, एंड आई रिकॉर्डेड माई सेल्फ विद दिस अनवांटेड गेस्ट, पिम्पल कह लो या जो भी, आई रियली डोंट नो ये क्या है, बिकॉज लाइक मुझे पिम्पल्स होते नहीं एक्चुअली, ओनली व्हेन आई ईट बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में स्वीट्स, देन आई हैव दीज फुंसी, आई लाइक टू से। इसमें पस भी है, सो आई रियली डोंट नो। एंड ऑल्सो इस टाइम पर ना लाइक मैंने अपने फेस को एकदम नॉर्मल नेचुरल जैसा दिखता है ना वैसे रिकॉर्ड किया है। एंड आई ऑल्सो वॉन्ट टू एड्रेस कि लाइक कैन यू सी मेरी नाक पे काफ़ी ज़्यादा डॉट टाइप कुछ हो गया। आई रियली डोंट नो ये सब क्या है, बट आई एम थिंकिंग ऑफ डूइंग 7 day और 14 day एलोवेरा चैलेंज, बिकॉज वो घर पर भी है, बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो मुझे वो भी ख़त्म करना है। एंड मेरी स्किन व्हाट टू से इज़ नॉट डूइंग दैट ग्रेट, सो एंड ऑल्सो यहाँ पर आई वॉन्टेड टू रिकॉर्ड कि देखो थोड़ा सा एक्सपोजर बढ़ाने से हाउ योर फेस चेंजेस ऑन द कैमरा, राइट। अभी जो पहले दिख रहा था वो कितना अलग था, एंड नाउ आधे से ज़्यादा निशान तो वैसे ही छुप चुके हैं, राइट। बट मैंने फिर से वापस से वैसे ही किया डार्क में। कैन यू सी कितना फ़र्क होता है। दिस बाय द वे आई वॉन्ट टू टेल यू कि दिस इज़ हाउ my complexion, my color, my face, my texture, everything looks like in reality. So please never get intimidated कुछ भी ऐसे देख के, हाँ सोशल मीडिया पे ग्लास स्किन कुछ नहीं होती. So we'll see if I do this aloe vera challenge or not, and we'll meet tomorrow. Okay, bye bye, good night, take care, I love you so much.